Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Software Quality Assurance, lecture number 15. In today's lecture, Software Quality Assurance, lecture number 15. Content which we will be covering in this lecture are why we mostly try to focus on process. Can we differentiate between process and quality? And third one, categories of process improvement and benefits. So in this short lecture, I will be trying to focus and complete these three contents, and rest of the three contents, importance of terms CM&I in SQA, importance of representation, different models used in SQA and their comparison. Rest of these three topics will be covered in next part. Okay, so let's start today's lecture. Can we differentiate between process and quality? Yes, obviously, we can differentiate between process and quality. Process is divided into different steps, and it's continuous. It's a category in which we continuously doing something. For example, when we talk about software processes, then there must be some stages, and in those stages, अगर हम कोई प्रोसेस करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हमने कहा कि हम इस स्टेप पे ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो अब वो जो प्रोसेस हम अप्लाई करना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर के उस प्रोजेक्ट पे, जो प्रोजेक्ट हमें दिया गया है, जो भी प्रोजेक्ट हमें दिया गया है उसके अंदर हमें बग फाइंड करना है या हमें उसमें कोई एरर रिमूव करना है. So whatever the thing is, whether we are trying to find any bug in that particular step, or we are trying to find any error or anything, so it means we have to apply any process. Now, what actually process is? It's the different actions, it's different steps in order to achieve some particular results. Okay? Mean कि जब हम कोई भी ऐसा स्टेप, कोई ऐसी सीरीज ऑफ एक्शन हम फॉलो करें, कोई ऐसे एक्शंस हम फॉलो कर रहे हो उस स्टेप के ऊपर जिसका हमें कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट पेश हो. हमने अगर उस पर कोई एप्लीकेशन, कोई लेटेस्ट मॉडल अप्लाई किया है तो उस मॉडल का हमें पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए तो हम कहेंगे हमने ये प्रोसेस अप्लाई किया है तो जिसका हमें ये रिजल्ट मिल गया है. ओके, सो अब क्वालिटी क्या है? प्रोसेस तो हमने देख लिया कि कोई एक्शन, कोई ऐसे रूल्स जो हमने अप्लाई किए रिजल्ट आ जाए. ओके, जब क्वालिटी की हम बात करते हैं एंड हम कहते हैं कि इसका हमारे वो उस लेवल तक आ जाए. 100% क्वालिटी है, 50% क्वालिटी है, जो हमारे पास डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं उस तक पहुंच जाए. मींस कि समथिंग विद इन द स्टैंडर्ड or according to that particular standard which is already defined for that project is called quality. Let's see why we mostly try to focus on process. Number one, because we demand focus on that particular steps of that particular project. Then we try to literate our team members. We try to literate person involved in that particular project. अगर उनको हम लिटरेट नहीं करेंगे, जो लोग हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब है हम अपने प्रोसेस पे वो कंसंट्रेशन नहीं दे रहे, हम वो फोकस नहीं दे रहे. तो अगर प्रोसेस आपने फोकस रखना है
उस प्रोजेक्ट का, तो हमें जितने भी टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमें उन सबको लिटरेट करना होगा। हमें उन सबको बताना होगा कि हम ये रूल, ये पॉलिसी अप्लाई करने जा रहे हैं, ये प्रोसेसेस अप्लाई करने जा रहे हैं, तो जो है ताकि उन्हें पता हो और वो उसी तरह से कदम उठाए और उसी तरह से काम करें। थर्ड के स्मार्ट थिंकिंग हो, ये नहीं कि बस सोच लिया और काम कर लिया, नहीं, सोचें, ऐसा सोचें कि जिसका जो है रिप्लाई कंस्ट्रक्टिव हो। मीन्स के व्हेन यू थिंक स्मार्टली देन definitely you lead to constructive answers. Through smart working and processing, we can go towards the smart processes. If we can't think smartly, we can't get constructive answer related to that particular object or related to that particular project. Next we have when we think of technology, we are discussing process and quality. अब ये दोनों प्रोसेस एंड क्वालिटी की बात टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे आती है? हमने नॉर्मल देख लिया कि हमें लोगों को लिटरेट करना है, लास्ट स्लाइड में जिस तरह देखा कि हमें प्रोसेस हमारा तभी फोकस्ड हो सकता है, तभी अच्छा हो सकता है कि हम जितने लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें, प्रोजेक्ट में, उस प्रोसेस में, वो सब लिटरेट हों। ओके, देन हम लोग जो भी स्टेप अप्लाई कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव वे में हम अप्लाई करें और हर स्टेप पे हमारा फोकस्ड हो कि क्या डिमांड कर रहा है वो स्टेप, या क्या उसके अंदर काम हो रहा है वो कम्प्लीटली फुलफिल हो और स्मार्ट थिंकिंग हो। देन हम जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, देन वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के अंदर हम स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो डेफिनेशन है, यानी कि हम वो स्टैंडर्ड्स, वो मेजर्स अप्लाई कर रहे हों जो कि उस रूल से रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो और उसका 100% रिजल्ट है, उसे हम क्वालिटी कहते हैं, या उसका मैक्सिमम रिजल्ट है, ये कहना बेहतर है, तो उसे हम क्वालिटी कहते हैं। तो इसी तरह जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो जब हमारे पास प्रॉपर रोड मैप से, यानी वो जो टेक्नोलॉजी हम अप्लाई करने जा रहे हैं उसका प्री रिक्विजिट जो भी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है, देन इट मीन्स कि हमारे पास क्वालिटी अचीव हो गई है। हमने वो टेक्निक, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी हमने एक्टिविटी की है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उस एप्लीकेशन के ऊपर, वो कंस्ट्रक्टिव वे में की है, वो हमने लिटरेटेड पर्सन से की है, लिटरेटेड टीम मेंबर से करवाई है। तो इट मीन्स कि हमारे पास वहाँ भी प्रोसेसेस कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड्स, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड पॉलिसीज, एंड हमारे पास वो रोड जो टेक्नोलॉजी है वो अकॉर्डिंग टू रोड मैप अप्लाई हो रही है। देन जो भी बेनिफिट्स है, जो भी कॉन्टेक्ट्स है, वो प्रॉपर एप्रोप्रिएटेड है। थिंकिंग ऑफ क्वालिटी डेफिनेशन, द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू डेवलप एंड मेंटेन इट। ओके, कि जैसे हम लोग जो हम नॉर्मली हम कह रहे होते हैं कि जो भी हम किसी चीज को देखते हैं या हम कोई प्रोडक्ट को देखते हैं, हम कहते हैं इस पे देख स्टैंडर्ड का काम हुआ है, इस चीज पे जो है स्टैंडर्ड अप्लाई हुआ है, देखो ये एक ब्रांड की चीज है। तो क्यों हम ये कह रहे होते हैं? क्योंकि वहां पे बनाते हुए उसको, उसके हर स्टेप पे पर्टिकुलर प्रोसेस स्टैंडर्ड वाइज अप्लाई किए हुए होते हैं, और जब वो स्टैंडर्ड वाइज हर चीज अप्लाई की गई हो राइट टाइम पे करेक्ट वे में, तो इट मीन्स कि क्वालिटी उसमें फुलफिल की गई है और वो क्वालिटी उससे नजर आ रही है, दिख रही है। देन द लास्ट कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर, that categories of process improvement benefits. So totally we have 8 general categories which improve and which give some benefits to the persons who are applying different rules on that particular process. So though these categories are: number 1, improve schedule and budget predictability. As we already learned in previous lectures, that scheduling and budgeting is also one of the important part of project estimation. So whenever you try to maintain the quality in your processes, you should improve the schedule and budgeting predictability. Second, increase the productivity. Obviously, as much as you will increase the productivity, you will lead the market benefits. Third one, improve quality as measured by defects. Less defects, less bugs, quality will increase. Fourth,
increased customer satisfaction. Okay, customer satisfaction is that you have to complete all demands raised by the customer. Okay, जो कस्टमर्स कहते हैं कि मुझे ये चाहिए एप्लीकेशन में, ये एरर नहीं होना चाहिए, बार बार एरर आ रहा है, ये रिमूव कर दें, इतने में कर दें, इतने टाइम पे मुझे दे दें, वो सारी एक्सपेक्टेशन, वो सारी जो डिमांड्स है कस्टमर्स की, वो आप फुलफिल कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं विद पर्टिकुलर टाइम, दैट्स मीन यू आर सेटिस्फाइंग दैट कस्टमर. इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल. अब एम्प्लॉय मोरल किस तरह इम्प्रूव होगा? आप उनको इंसेंटिव दें. ओके, एंड so improve employee morale. How you can improve the employee morale? Give some incentives to them, give bonus to them, give extra leaves, rest leaves to them, such like that. Then we have increased return on investment. So if you do some investment on that particular project, right over the assessment, try to invest, try to give return of that particular investment as soon as possible. By doing this, you will get toward the achievement. And the last one, decrease cost of quality. जैसे पहले 100 उसमें स्टेप्स में हम क्वालिटी अचीव कर रहे थे, अभी 50 स्टेप्स पे क्वालिटी अचीव कर ले. As less the achievement steps, as less the cost, the quality cost will be comparison to that, the quality will be higher. Cost less, cost decrease, quality increase. Okay, it's not necessary that as much as the cost is, quality will be the greater. Okay, जो नॉर्मली हमारे मास्टर में है कि जितने ज्यादा पैसे होंगे भाई इतना स्टैंडर्ड की चीज होगी. It's not necessary. The thing is that you have you apply the standard correctly, you apply the processes correctly, whether it's in minimum cost or maximum cost, but the applying percentage of particular step and procedures will be higher. That's the end of this lecture. So एक समराइज वे में मैं देख लेती हूँ लेक्चर. Can we differentiate between process and quality? Yes, we can differentiate between process and quality. How we can differentiate process and quality? Because quality is the standard of something as measured against other thing of a. With this, our lecture is ended. See you in next lecture with further description about software quality assurance. Stay tuned with this channel for latest updates. Thank you.